प्रभु का धन्यवाद करते कि भाई मैथ्यू के जरिए फिर एक बार हमको ये रिमाइंड कराया कि परमेश्वर के साथ चलना हमारे जीवन का उद्देश्य है या कॉलिंग है। I want to thank God that God reminded us once again that our aim in life it should be to walk with God. बाइबल कहता है हम सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया था, हम सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। The Bible says that all of us were walking in our own ways and we had turned each one to our own way. So like dear brother sister, या तो हम अपनी इच्छा पे चल सकते हैं या तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है उसमें हम चल सकते हैं। So brothers and sisters, we can either walk in our own ways or we can walk in God's ways. So हम सबके लिए जीवन में ये कॉलिंग है कि प्रभु जो हमसे कहता है उसकी बुलाहट की ओर हम बढ़ते जाए हर दिन। So each one of us should have the desire that to walk in the ways that God has called us to walk. हमने सुना इन लोगों के बारे में जो पुराने नियम में थे, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज सुनकर वो परमेश्वर के पीछे चलना उनका डिजायर था। We heard that how in the Old Testament, even though the people didn't have the law, but it was in their desire to follow God and to obey लेकिन God. नए करार में बाइबल कहता है हम अकेले नहीं हैं। And in the New Testament, Bible says that we are not alone. परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसने हमारे भीतर डाला है। God has given us His Holy Spirit to live in us. इसीलिए हम अब परमेश्वर के साथ चलना हम हमारे लिए हमारे खुद के ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है। So walking with God will not be because of our own strength, but because of the Spirit that is in us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगा और वो हर चीज बताएगा जो प्रभु ने हमारे प्रति सोचा है। And the Spirit gives us the power, and it will remind us and tell us all that God has prepared for us. So dear brother sister, परमेश्वर जब मूसा को भेज रहा था इजराइलियों के पास, And when God was sending Moses to the people of Israel, तो मूसा एक क्वेश्चन पूछता है, प्रभु तू तो मुझे भेज रहा है इजराइलियों के पास, लेकिन मुझे बताया नहीं कि मेरे साथ कौन किसको भेज रहा है। and God said, Moses said to God, God, you're sending me to the people of Israel, but you didn't tell me who is going to go with me. निर्गमन के 33 अध्याय में हम वो पढ़ सकते हैं। And in Exodus 33 we can read that. वहां पर उसके 12वां वचन में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। Moses said in verse 12 to the Lord, see, you say to me, bring up this people, but you have not let me know whom you will send with me. So वो वेट कर रहा था कि परमेश्वर उसके कार्य करने के लिए कोई इंसान को उसके साथ भेजने की इच्छा रखता है। So Moses was waiting that God would send someone, another human being with him to do God's work. So dear brother sister, क्या हम चाहते कि परमेश्वर हमारे साथ चले या हम किसी इंसान या व्यक्ति का इंतजार कर रहे कि कौन मेरे साथ चलेगा। So brothers and sisters, do we wait for God to be to walk with us, or do we wait for another human being to help us? देखो कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। How do we come to know that we are walking with God? देखो उसके आगे लिखा है, वो कहता है परमेश्वर आपने मुझे बताया नहीं कि कौन मेरे साथ चलेगा, लेकिन इतना बताया है कि मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर रहेगी। Moses says that you haven't told me who is going to come with me, but you have just said that I know you by name and you have also found grace in my sight. तो परमेश्वर का अनुग्रह उसको प्राप्त होगा वो उसे पता था। So Moses knew that I have found grace in God's sight. तब 13वें वचन में परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? And then in verse 13 what does God say to Moses? नहीं सॉरी 14वें वचन में In verse 14. यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा। In verse 14 God says to Moses, my presence will go with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। God says to Moses that I will walk इससे with बड़ा you. क्या चीज है डियर ब्रदर सिस्टर कि हम किसी व्यक्ति के खोज में है कि कौन मेरे साथ चलेगा। What more greater thing do we need? Are we still searching for a man to be with us? यहाँ लिखा है परमेश्वर खुद हमारे साथ चलेगा। Here it says that God himself will go with us. अब मूसा के अंदर कितना डिलाइट आया होगा,
मूसा के अंदर कितनी खुशी आई रहेगी And just imagine how happy Moses would कि have been परमेश्वर खुद मेरे साथ चलेगा. that God Himself is going to walk with me. अब उसका प्रश्न बदल गया. And now his question has changed. अब वो कहता है यदि तू नहीं आएगा तो हमको भी आगे मत भेज. Then Moses says that if your presence doesn't go with us, then we don't want to leave this place. देखो पहले वो पूछ रहा था कि आप किसको भेजोगे, बताया नहीं. First, Moses was asking, you haven't told us who's going to go with us. मतलब वो किसी का इंतजार कर रहा होता होगा, कोई व्यक्ति मेरे साथ परमेश्वर भेजेगा. He was waiting for some another person that, okay, if this person will go with लेकिन me. जब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा, But God says that my presence will तब go इसका with you. प्रश्न बदल गया. Then- इसने अब वो कोई इंसान के बारे में नहीं पूछ रहा. अब वो कहता है अगर तू मेरे साथ आगे नहीं आएगा तो मुझे भी यहाँ से आगे मत जाने दे. Then now Moses' questions changed that, okay, if God, your presence is not going to go देखो with ये us, we don't want revelation to है. go from here. रेवलेशन है ये. And what a revelation. अब वो इंसान के ऊपर आशा नहीं रख रहा. And now he is not hoping on any human being. अब वो परमेश्वर के ऊपर आशा रख रहा है, प्रभु तू मेरे साथ चल. Now his hope is on God and saying that, God, you go with us. और उसके आगे लिखा है परमेश्वर तुझे विश्राम देगा हृदय में. And further it says that God will give you rest. अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, So if we are walking with God, हमारे हृदय में 3 चीज रहेगा. then there'll be 3 things in our heart. परमेश्वर की धार्मिकता, God's righteousness, उसका आनंद His joy, और उसका जॉय. राइट. आनंद His joy. वो इसकी पुस्तक में लिखा है रोमियो अध्याय 14, शांति और आनंद. करेक्ट. धार्मिकता, शांति और आनंद, ये 3 चीज हमारे भीतर रहेगा. Righteousness, joy and peace. क्योंकि रोमियो अध्याय 14 के 17 में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर In that verse it says that the kingdom of God is not eating and drinking, लेकिन वहां पे 3 चीज लिखा है. धार्मिकता, but it is 3 things: righteousness, शांति peace, और प्रभु का आनंद. and God's joy. तो अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे तो ये बात इसका चिन्ह है. If God is walking with us, isn't this better? ये वो चिन्ह है इस बात का These are the 3 signs कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में चल रहे हैं. that we are walking in God's righteousness, और दूसरी चीज हमारे भीतर शांति है. and that we have His peace in us. हमारे अंदर गड़बड़ी नहीं है, There is no uncertainty in us. कंफ्यूजन नहीं है, There is no confusion लेकिन in us. प्रभु यीशु का शांति है. But God's peace is in us. और तीसरा उसका आनंद है. And third, His joy is in us. बाइबल कहता है उसका आनंद हमें सामर्थ्य प्रदान The करता है. Bible says that the joy of the Lord is our strength, उसके निकट आनंद की भरपूरी है. and that He gives us a fullness of joy. सो डियर ब्रदर्स, जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे हमारे अंदर वो पीस और जॉय और वो आनंद रहेगा. And brothers and sisters, we walk with God. In us, we'll have righteousness, peace, and joy. जब दाविद को पता चला ये मेरे लाइफ में मिसिंग है, When David came to know that this is missing in his आपको life, पता है भजन संहिता 51 में रो रो के यही चीज मांग रहा है, प्रभु अपनी आत्मा मुझसे दूर मत कर, अपनी शांति मुझसे दूर मत कर. और वो कहता है प्रभु वो आनंद मुझसे दूर मत कर. and when David realized his sin in Psalm 51, he says, God, don't take your spirit away from me, don't take away your joy from me, and don't take away your peace from me. सो जब भी हमारे अंदर से ये 3 चीज मिसिंग रहेगी, Whenever these 3 things are missing in us, सो हमें पता चलना चाहिए कि मेरे लाइफ में कुछ तो अनसेटल्ड थिंग है जो अभी तक परमेश्वर के साथ हमने मेल मिलाप नहीं किया है. then we should realize that there's some unsettled thing in us and that we have not reconciled with God. सो प्रभु हम सबकी सहायता करे डियर ब्रदर सिस्टर, May God help each one of us, कि हम God, हर दिन परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से उसके अनुग्रह पर चलते रहे. that we would walk under the guiding of God's. हमने सुना कि परमेश्वर के साथ चलना We heard about walking with God, मैं रियली चैलेंज हो गया. and नोआ I've been, हाँ यार, and I've been challenged by that. कि नोआ का टाइम पे जब नोआ परमेश्वर के साथ चला तो उस टाइम पे बहुत सारा पाप बढ़ गया था दुनिया के अंदर. We saw that when Noah was walking with God, that was a time when there was plenty of sin all around him. क्या ये पॉसिबल है कि इस समय में हम परमेश्वर के साथ चल सकते कि नहीं चल सकते? And then, is it possible in such conditions to follow the Lord? ये अपने लिए क्वेश्चन मार्क है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. This is a question mark for each of us. क्या आज के दिन में हम परमेश्वर के साथ चल सकते कि नहीं चल सकते? In the present day, is it possible for us to walk with God or not? चल सकते हैं, We can walk with Him. हम चल सकते हैं.
We can walk with Him. और क्योंकि हम देखते कि जिस टाइम पे नोआ का टाइम पे जो जिस तरह पाप था उस समय आज भी सेम ऐसे ही है. So we see that sin was multiplied a lot during Noah's days, just like it is now. और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारा भयंकर पाप इस दुनिया में फैला है. We see that there's a lot of grave sin in this world. और हमें ऐसा विश्वास हमको चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ उसके पद चिन्हों पर. And we need to have the faith that we will be able to walk with God. यहाँ पर एक पत्रस हमें एनकरेज कर रहा है 1 पीटर चैप्टर 2 में. We can see in 1 Peter chapter 2 that Peter is encouraging us. 21 में, And 2 and verse 21. तुम इसलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे दिया है कि तुम उसके चिन्हों पर चलो या पद चिन्हों पर चलो. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered you, leaving you an example for you to follow in his steps. ये हम परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब परमेश्वर हमें किस चीज में अगुवाई कर रहा है, किस चीज में बोल रहा है, उससे बात मानकर उसके पद चिन्हों पर चलना. So when the Lord has called us, we need to listen to him and we need to walk in his footsteps. यहाँ पर हम संसार में रहते हुए बहुत से लोग संसार के साथ चलते हैं. So many times when we are living in this world, we are walking along with the world. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर, परमेश्वर हमको एनकरेज करे कि तुम परमेश्वर के साथ चलो. परमेश्वर क्या बोलना चाहते हो उसके पद चिन्हों पर चलो. यहाँ पर पत्रस वही बता रहा है. But the Lord is telling us when we are walking with him, we need to pay attention to what he is speaking and walk accordingly. और एक वंडरफुल प्रॉमिस है जॉन 16 में. And we have a wonderful promise from God in John chapter 16. हमें कुछ सिचुएशन में हम रहेंगे, हमको पता नहीं हमें क्या करना है, बट यहाँ पर प्रॉमिस बता रहा है कि परमेश्वर हमको हेल्प करेगा. Many times when we face situations, we do not know what to do. जॉन But 16:14 में in John 16:14, it's clearly mentioned what we should do. वो मेरी महिमा करेगा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. For in John 16 and verse 14, he shall glorify me, for he shall take of mine and shall disclose it to you. हम जब परमेश्वर के साथ कुछ वॉक करते हैं तो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है. Many times when we are walking with men, we do not understand what we have to do. लेकिन ये वादा बता रहे कि परमेश्वर जो हमें आत्मा दिया है वो हमको हेल्प करेगा जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे. But here it says very clearly that when we are walking with the Lord, the Spirit of God will speak to us and disclose to us what we are supposed to do. वो उन बातों को हमारे मन में डालेगा जो परमेश्वर चाहता है कि. So he will speak to us and he will disclose it to us. What is it that we have to do? कितना खुशी की बात है. Isn't it a matter of joy? कि परमेश्वर हमको हेल्प करेगी कि वो हमारे मन में डालेगा कि विजय में अगला स्टेप मुझे क्या लेना है. So the Lord will speak to me and he will disclose it to my heart what I should be doing. और एक वचन प्रोवर्ब्स में 3 में देखते हैं अपन. And we can look at Proverbs chapter 3. 5 में. Proverbs 3 and verse 5. तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. यहाँ पर बता रहे कि परमेश्वर के संपूर्ण मन से हमको भरोसा रखकर आगे बढ़ना है. It says here very clearly that we need to put a complete trust in the Lord and walk accordingly. ये वचन मुझे लास्ट वीक टू वीक में मुझे ब्लेस किया. And this was a verse which blessed me last week. हमें बहुत सारा सिचुएशन में हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए. In some situations we know what we are supposed to do. लेकिन क्या हम उस बात को परमेश्वर के सामने रखते हैं? मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए. But in those situations also, are we keeping those things before the Lord and asking him what should we do? ये मैं अगर करूँगा मेरे लिए फायदा है और अच्छा है. I know that when I do this thing, it will be profitable for me. ये सबको ऐसा समझ में आता है माइंड में हमारे. These are things which we understand. बट यहाँ पर वचन क्या लिखा है?
उसी को स्मरण करके सब काम किया करना। But here it's saying that in all your ways acknowledge him and he will direct your paths. ब्रदर एंड सिस्टर, ये हमको पता है इस सिचुएशन में क्या करना है, बट परमेश्वर चाहता है कि उसको हम बताओ, प्रभु मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने के लिए, क्या ये सही है या गलत है, मुझे पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये सही रहेगा, बट परमेश्वर आप मुझे हेल्प करो। So, in a situation when we already know what we are supposed to do, even in that situation, are we willing to acknowledge? Are we willing to go to God and tell Him, Lord, this is what I think, but is it right for me to do this? और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर हमको सीधा मार्ग निकालेगा, आगे वचन में लिखा है हमारे लिए मार्ग बताएगा और रास्ता निकालेगा। And it's saying here very clearly that He will make your path straight, or He will make it very clear to you then. और कितना बार मैं फेल हो गया ऐसा मैंने नहीं किया करके, And many times I have failed because I did not do this. और परमेश्वर मुझे एनकरेज कर रहा है कि सारे बात तुझे पता है, फिर भी परमेश्वर को बता के डिसीजन लेगा, हमारे लिए बहुत सेफ है। And the Lord has showed me that even though I know what to do, I need to go to the Lord and inquire from Him. प्रोस में एक वचन में लिखा है, And there's another verse from Proverbs. कुछ मार्ग ऐसे जो सीधा दिखाई देता है, सही दिखाई देता है, हमको लगता है ये सही है, There are many times when we feel that the path we are taking is right, बट वचन में आगे लिखा है कि वो विनाश की ओर जाता है। but the end of it is destruction. हमको पता नहीं परमेश्वर ये मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये इसका अंत क्या होएगा, मुझे पता नहीं। So suppose we take a path, we do not know the end of it. तो परमेश्वर में एनकरेज कर रहा है, इस तरह से हम परमेश्वर के साथ पूछ कर हम परमेश्वर के साथ इस टाइम पे हम परमेश्वर के साथ वॉक कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं। But the Lord is encouraging us, saying that we inquire from Him and find out what is His will for us. Amen. Amen. Very important message about walking with God. बहुत महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें परमेश्वर के साथ चलने के विषय में। In 1 John chapter 1 verse 6, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 6वां वचन, if we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। See, here the Bible says, if we say, just by words, we say that I am walking with God, I have fellowship with God, I am filled with the Spirit, I have the divine nature, whatever, if we just say, it is of no use. तो बाइबल ऐसा कहती है कि अगर हम सिर्फ कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और हमारे साथ हम परमेश्वर की सहभागिता में हैं, तो सिर्फ कहने से ही हम साथ नहीं चलते। So if we just say and if we walk in darkness and yet we are in darkness, we lie and do not practice the truth. और अगर हम सिर्फ कहते हैं और अंधकार में चलते हैं तो वह एक सत्य नहीं, वह एक झूठ है। God knows that all of us are sinful and it is not possible to be holy. और परमेश्वर यह जानते हैं कि हम सभी पापी हैं और यह इतना आसान नहीं है कि पवित्र रहना। So walking the truth means only we have got to be honest with whatever I have got, whatever we have got. तो सच्चाई में चलने का मतलब यह है कि हम यह पूरी ईमानदारी से मान लें कि जो हम कर रहे हैं हम उस बात को मान लें। Just saying that I am walking with God and if I walk in darkness, then we do not practice the truth. और अगर हम सिर्फ कहेंगे कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं परंतु हम असली में अंधकार में चल रहे हैं, तो यह एक झूठ है। The Apostle John has described two things which is walking in darkness. तो प्रेरित यूहन्ना ने दो बातें कही हैं जिससे हमें समझ में आता है कि अंधकार में चलना क्या होता है। 1 John 2:5. पहला यूहन्ना 2 उसका 5वां वचन, For whoever keeps his word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in him. पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। So first thing that John is saying that we have to, keep his word. Whatever we read in the Bible, especially Matthew 5, 6, 7, whatever we read that we have got to keep his word, then only we are walking the truth.
तो यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना ऐसा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो भी हम वचन पढ़ते हैं हमें उसमें चलना है और उसको अपने जीवन में अमल करना है, जैसे कि मत्ती के 5वें 6वें और 7वें अध्याय में लिखा है उसके हिसाब से चलना है। Otherwise, if we are not following the commandments of God, then we are walking in darkness. It is not truth. और अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब है हम अंधकार में चल रहे हैं और सच्चाई पर नहीं चल रहे। And second thing which John talks about of darkness is 1 John 2:9. और जो दूसरी बात प्रेरित कह रहे हैं अंधकार में चलने के विषय में वह है 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 9वां वचन। One who says that he is in the light. He is in the light means he is walking with God. और जो को And yet hates his brother is in darkness until now. और जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में ही है। See, whatever we may say, but if we are hating even one person in the world, then that is in darkness. और जो भी हम कहते रहें, अगर हम किसी भी पूरे संसार में किसी भी एक व्यक्ति से भी अगर हम नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अंधकार में चल रहे हैं। You may have 10 different enemies and you have forgiven 9 of them, but you have not forgiven one, then also God doesn't accept you. और अगर हमारे 10 शत्रु हैं और उनमें से हमने 9 शत्रुओं को माफ कर दिया है और कोई भी एक शत्रु है जिसको हमने माफ नहीं किया है तो परमेश्वर के अनुसार हम अभी भी अंधकार में हैं। So if we don't love, that is if we don't forgive, then that is living in darkness. तो अगर हम प्रेम नहीं करते हैं या मान लीजिए कि हम माफ नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हम अंधकार में चल रहे हैं। So two things Apostle John is talking about is about walking in darkness. One is obeying God's commandments. तो दो बातें यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना बोल रहे हैं जो परमेश्वर के साथ चलने के विषय में है, वह है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना। And second thing is not to hate my brother. एंड जो दूसरी बात है वह है कि मुझे अपने भाई से नफरत नहीं करनी है। Praise be to God. परमेश्वर को स्तुति हो।